રીલ લાઈફમાં તમે સિંઘમ પોલીસ અધિકારીને જોયા હશે, પણ આજે આપણે એક એવા પોલીસ અધિકારીની વાત કરીશું જે રિયલ લાઈફમાં પણ સિંઘમ છે. સત્યમેવ જયતેના મંચ પર આજે એક એવા અધિકારી આપણા મહેમાન બન્યા છે જેમને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સિંઘમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. જી હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વર્ષ 1989ની બેચના સિનિયર આઈપીએસ ઓફિસર અનિલ પ્રથમની. ગુજરાત પોલીસના જાબાજ આઈપીએસ ઓફિસરના લિસ્ટમાં તેમની ગણતરી થાય છે. આઈપીએસ અનિલ પ્રથમના કારનામાની જેટલી વાત કરીએ તેટલી ઓછી છે. નીડર વ્યક્તિત્વ ધરાવતા અનિલ પ્રથમ ડિપાર્ટમેન્ટના અનેક પોલીસ કર્મચારીઓના આદર્શ પણ છે. તેમની ખાસિયતની વાત કરીએ તો તેમની કામગીરી અને તેમના નિયમો બાબતે ક્યારેય તે બાંધછોડ કરતા નથી, જેના કારણે તેમને અનેકવાર કપરી પરિસ્થિતિઓનો સામનો પણ કરવો પડ્યો છે. તેમ છતાં હંમેશા તેઓ પોતાના નિયમો અને સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ચાલ્યા છે, જેના કારણે તેમને અનેકવાર રાજકીય પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા ધમકીઓ પણ મળી છે. આઈપીએસ અનિલ પ્રથમ પોતાના નિયમોને વળગી રહેતા, જેના કારણે તેમને ધમકી મળતી કે તૈયારી રાખજો, બદલીની તમને જોઈ લઈશું. રાજકીય નેતાઓની આવી ધમકી બાદ આઈપીએસ અનિલ પ્રથમ જે જવાબ આપતા તે સાંભળીને તમને હસવું આવશે. તે ધમકી આપનાર નેતાને સ્પષ્ટ કહી દેતા કે સાહબ સુટકેસ તૈયાર હૈ. અનિલ પ્રથમના ઈરાદાઓ પહાડ જેવા મજબૂત હતા અને એટલે જ ક્યાંક ને ક્યાંક તે અનેક નેતાઓને કાંટાની જેમ ખૂંચતા પણ હતા. બીજી તરફ જો તેમના કામ અને ડેડિકેશનની વાત કરવામાં આવે તો અનિલ પ્રથમે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે અનેક ચર્ચાસ્પદ ગુનાઓના ભેદ પણ ઉકેલ્યા છે અને સફળતા મેળવી છે. અનિલ પ્રથમ એક જાબાજ અધિકારી જ નહીં પરંતુ વિઝનરી પર્સન પણ છે. હાલ જે રીતે વધી રહેલો સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ તંત્ર માટે ભવિષ્યનો પડકાર બની રહ્યો છે, તે જ સાયબર ક્રાઇમ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે આઈપીએસ અનિલ પ્રથમે 2005માં એક મોટું વિઝન જોયું. તેમણે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સાયબર સેલ અને એફએસએલ યુનિટ બનાવવા જોઈએ તેવી વાત કરી અને તેના પાયા પણ નાખ્યા. અનિલ પ્રથમે તે સમયે કહ્યું હતું કે સાયબર સેલમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરી શકે તેવી ટેકનિકલ એક્સપર્ટની ટીમ ઊભી કરવી જોઈએ, જેના થકી પોલીસ અને જનતાને ખૂબ મોટી મદદ મળી રહેશે. આઈપીએસ અનિલ પ્રથમની એ દીર્ઘદ્રષ્ટિના કારણે આજે આપણે સાયબર સેલ અને એફએસએલ જેવી એજન્સીની સેવાનો લાભ મેળવી રહ્યા છીએ. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક અદ્ભુત અને જાબાજ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા સિનિયર આઈપીએસ ઓફિસર અનિલ પ્રથમ આજે સત્યમેવ જયતેના મંચ પર મહેમાન બન્યા છે. તો આવો જાણીએ રિયલ લાઈફના સિંઘમની કેટલીક એવી વાતો કે જે તમને ક્યારેય નથી સાંભળવા મળી. નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ સત્યમેવ જયતેમાં હું વિશાલ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું. રિયલ લાઈફમાં આપણે અનેક સિંઘમ જોયા હશે, પરંતુ રિયલ લાઈફના એવા સિંઘમ અને સીઆઈડી ક્રાઇમના ડીજીપી અનિલ પ્રથમ સાહેબ આજે આપણા મંચ પર ઉપસ્થિત છે. આપણે સીધા જ તેમની સાથે વાત કરીશું. પ્રથમ સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે મંતવ્ય ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર. નમસ્કાર સાહેબ, આપ એક અધિકારી તરીકે અને એક સિંઘમ જેવી પ્રતિભા સાથે આપ ગુજરાત પોલીસમાં કામ કરી રહ્યા છો, પરંતુ આપના જીવનશૈલી અને આપનું બાળપણ કેવું હતું તે વિશે થોડું જાણવા માંગીશું કે ક્યાં આપનો જન્મ થયો અને કેવી રીતે આપણે અભ્યાસ કર્યો. मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में एक गांव है कैराना, वहाँ हुआ था. और जब हम छोटे से थे तभी मेरे फादर, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिली, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे. तो मेरी सारी पढ़ाई कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक दिल्ली में हुई है. सर, स्कूलिंग का टाइम जो होता है, अनेक ख्याल आते हैं दिमाग में जब स्टूडेंट होते हैं कि ये बनना है, वो बनना है. आपके फादर खुद सरकारी नौकरी में थे. क्या सोचा था आपने उस टाइम पे कि क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप आईपीएस तक? मैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल जो कालकाजी में था वहाँ पढ़ता था. और उसके बाद हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलेज जिसका नाम है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ. वहाँ मैंने बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम की. तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तक तो इतना ज़्यादा उस समय कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता था और खेलते कूदते पढ़ते लिखते होते थे. लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो वो समय बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है. मैं जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ ज़्यादातर उस समय, ये मैं बात कर रहा हूँ 81 से 84 की, तब एमएनसी का काफ़ी बोलबाला था और लोग या तो एमएनसी में नौकरी करने के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट
या बिजनेस के लिए जाते थे। लेकिन क्योंकि हमें हमारे घर में सरकारी नौकरी का प्रभाव था, मुझे वहाँ पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगा कि सरकारी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी होना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमने सोचा था कि हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए। वो क्या होगी ये हमें भी उस समय डाउट था कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक अच्छी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ऐसी हमारी अभिलाषा थी। 1989 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद आप पुलिस में भर्ती हुए। क्या सोचा था, यानी जिस तरह से आपने सोचा था, जो स्कूल और कॉलेज में आपने सोच बनाई थी, और जब पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए, कितना आपको अंतर लगा कि जो वर्दी हम देखते थे ख्यालों में और जब वो वर्दी हमारे जिस्म में पे आती है, कितना फ़र्क हो जाता है, कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती है? जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब हम एज ए पब्लिक मैन देखते थे तो पुलिस की वर्दी का एक डर दिखाई देता था। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी के एक दोस्त ने कहा, जब उन्हें पता चला कि भाई ये तो पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि साहब ये कौन सी जगह भिजवा रहे हो, ये तो अच्छी रेपुटेशन नहीं है। ऐसा एक मान्यता लोगों के अंदर है। लेकिन जब जैसे हमने आईपीएस की ट्रेनिंग ली और जैसे जैसे आगे बढ़े, तो हमें ये पता चला, ये फील हुआ कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस या तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है पुलिस से, तो वो पुलिस से बहुत डरते हैं, या जिनका कुछ एक्सपीरियंस ख़राब रहा वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी नौकरी है जहां आप लोगों की समाज सेवा और उनके मन में जो गलत डाउट्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें एक्सपीरियंस हुआ, ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोगों की मान्यता दूर कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपने ज्वाइनिंग किया, अलग अलग कई जगहों पे आपने सर्विस भी की। आपकी जो छवि है वो गुजरात पुलिस में सिंघम के तौर पे है, क्योंकि शुरुआती तौर में आपने बहुत सारे काम किए, बहुत डिटेक्शन किए। कहा जाता है आपके इरादे भी चट्टान की तरह मजबूत थे। किस तरह से उस टाइम का पुलिसिंग था और अभी का जो पुलिसिंग है, कैसे देखते हैं आप? जब हम 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1990 में गुजरात में प्रवेश किया, तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग आनंद ज़िले में हुई। उसके बाद हमारी रेगुलर पोस्टिंग कच्छ ज़िले में रही। कच्छ ज़िले में करीब मैं 2 साल से ज़्यादा रहा और बहुत ही मेमोरेबल ये टेन्योर रहा, क्योंकि वहाँ हमने सुना था कि किस तरह के ऑफिसर की छाप से लोग और ख़ासकर जो क्रिमिनल हैं वो डरते थे। और वहाँ उस समय 3rd डिग्री का बोलबाला था। वो 3rd डिग्री एक एक्सीलेंट टेक्निक मानी जाती थी कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो क्राइम को कंट्रोल करेंगे, गुंडा कंट्रोल होगा और पब्लिक खुश होगी। ऐसा सब माहौल था। तो हमने भी उस समय इस चीज़ का थोड़ा बहुत फॉलो अप किया होगा। लेकिन जब हमें ये, क्योंकि हम कायदे को मानना हमारा काम है, तो जब ह्यूमन राइट्स एक्ट बना, ह्यूमन राइट कमीशन बना तो करीब 94-95 में, तो उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता था वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया और सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक एविडेंस के बल पर अपराधी को सज़ा मिले, इस पे फोकस किया। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रूल है वो रूल है। इससे पहले जो भी हुआ उसको अभी याद करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उस समय की डिमांड थी और उस समय रिजल्ट भी आए। जिस तरह से जो फिल्मों में सुना जाता है कि कई जगह पे अफसरों पे प्रेशर आता है, पुलिस पे भी प्रेशर आता है, आप पे भी कई बार प्रेशर आया। जैसे आप पालनपुर में थे, आप पे प्रेशर आया था। कुछ ऐसा भी सुना गया था कि आपको ऊपर से कई सरकारी या तो फिर राजनीतिक नेताओं के प्रेशर आया था कि ये नहीं करो वरना आपका तबादला हो जाएगा। पर आपके इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। क्या था पूरा वाकया, मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए कि जब हम एसपी होते हैं, आईपीएस होने का मतलब ये है कि आईपीएस जो उसको नेशनल पुलिस एकेडमी में पढ़ाया गया है वो उसको कॉपी बुक स्टाइल से फॉलो करेगा।
उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। और मेरी ये खुद की सोच है कि हमें जितना ज़रूरी है उतना ही सोचना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल्स के हिसाब से कई बार ऐसा हुआ कि जो नियम के हिसाब से जो ड्यू होते हैं, वो बदली का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो हमने पाया कि 5 साल से ज़्यादा के जितने भी लोग एज पर पुलिस मैनुअल ड्यू हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी थी, करीब 600-700 की। तो 600-700 को ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था और उससे सभी अफेक्ट होते थे। सभी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेताओं को ठीक नहीं लगा कि भाई ये तो हमारे लिए सूटेबल था, नज़दीक में था, फैमिली कारण से। पर हमने कहा कि जो एक बार हुक्म हो गया तो वी कैन नॉट चेंज, चाहे भले हमें कहीं भी जाना हो बदली कर रहा। इस तरह का सोच रहता था। क्या रिएक्शन आया आपने जैसे ये किया तो फिर? मेरी करीब 2 साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बदली हुई, ये मैंने देखा। फ्रीक्वेंट बदली होती थी मेरी 2 साल में। मैं समझता हूँ कि 7 से 8 बदली हुई। कुछ भी कारण हुए हों, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। वी लर्न, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग लोगों का से मिलना होता है। हालांकि फैमिली सफ़र करती है, बट वी हैव टू फॉलो इट। फैमिली सफ़र करती है, पुलिस की ड्यूटी है, कोई टाइम का फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान कोई अगर केस आ गया तो उसमें टाइम लगता है। कितना सपोर्ट रहा आपके फैमिली का आपके लिए और वाइफ का भी? फैमिली का तो ये था कि हम सुबह जब खासकर जब फील्ड में होते थे तो उसमें कुछ टाइम नहीं होता था कब निकले, सुबह निकले। और लंच का तो कुछ पता होता ही नहीं था, खाने का कुछ पता होता ही नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में जब निकले उस समय कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं था, इवन मोटर गाड़ियाँ भी उतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी। और आपको विलेज विजिटेशन और कैंप में, और जब क्राइम होता था सीरियस क्राइम, तो वहाँ कैंप करने का भी नियम होता है। तो आपको वहाँ गांव में, प्लेस में, रिमोट एरिया में कैंप करना, वहाँ जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काफ़ी होती थी, उसी से डिटेक्ट होता था। तो वो सब करते थे। तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दी फैमिली मेम्बर्स। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, आज के दौर में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्निकल क्राइम भी बढ़ गए हैं, तो आप क्या मानते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? दोनों का रोल है और दोनों ही ज़रूरी हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, मैं 2004 से 2008 तक सीआईडी क्राइम में साइबर सेल, इकोनॉमिक ऑफेंसेज और ये जो नए एक्ट कॉपीराइट वगैरह के आते थे, ये सब मैं देखता था। तो उस समय हमने ये प्रपोजल उस समय बनाए थे कि अगर साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए। डेडिकेटेड स्टाफ मतलब ट्रांसफरेबल होने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं, ऐसा ऑफिसर जो इसका जानकार हो, डिग्री हो, और वो रेगुलर साइबर सेल में काम कर सके, सीआईडी क्राइम में काम कर सके, तो इसका इंटरेस्ट होगा और वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा डिटेक्शन में। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में हमें फॉरेंसिक साइंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए हमारा खुद भी एक लेबोरेटरी होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। ये भी हमारा प्रपोजल था। वो जितने ज़्यादा हो सकें पुलिस स्टेशन साइबर के खुलने चाहिए। इस तरह के 3 उस समय भी हमने फोकस किया था, सजेस्ट किया था, जो धीरे धीरे बाद में पूरा हुआ। 2005 में आपने ये सोचा कि जैसे साइबर सेल होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफिसर होने चाहिए, एफएसएल की टीम होनी चाहिए। सोच कहाँ से आई? आप इतना जो लॉन्ग विज़न आप सोचते हैं, कैसे आपको लगा कि ये सब होना चाहिए? कौन से पहलू से आपको लगा कि ये सब आगे जाके काम लगेगा? पहलू सिर्फ ये है कि हमें ये सोचना है, जैसे मैं कॉमर्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लॉ मैंने किया हुआ है, तो एक कॉमर्स में कहावत है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अभी पुलिस के लिए कस्टमर कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक का सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से होता है, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे पुलिस, या उनके सामने अच्छी इमेज रख पाएंगे। तो ये जब तक हम उनके एंगल से सोचते हैं हमने क्या किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
हमारे करने से उन्हें कैसा लगा पब्लिक को, वो एंगल हम देखते हैं तो हम ये सोच कर पाते हैं। क्योंकि हमने ये हमारे जो आपको याद होगा पहले पब्लिक दरबार होते थे, विजिटर पूरा पूरा दिन होते थे, तो वो जो लोग आते हैं पूछते हैं बताते हैं, हमें यही सुनने को मिलता था कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, टाइम नहीं दे रहा पुलिस वाला, इतना टाइम हो गया है उसका निकाल नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों का कारण है कि हमारा अगर डिस्पोजल टाइम से नहीं होता है तो पब्लिक परेशान होती है। तो डिस्पोजल क्विक हो, उसको जो उसने एप्लीकेशन दी हैं उसको न्याय मिले, इसके लिए हमारे जो सिस्टम है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, जवाब देने का, वो फास्ट होना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज़ हमारे पास ये नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। इसके लिए ये हमें आइडिया आया कि जब तक ये नहीं करेंगे तो हम उनको न्याय नहीं दे पाएंगे। सर, काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं जो ऐसा सब सोचते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट में लाना वो बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आपने ये सब पूरा करने के लिए कोशिश की और कैसे सफल रहे? देखिए, दो तरह के अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी ऐसा बोलते हैं कि हम पॉलिसी बनाएंगे, नया नया आइडिया देंगे और फिर अमल करने के लिए दूसरों को छोड़ के आगे चले जाएंगे, तो उसका इफ़ेक्टिवनेस उतना नहीं रहता। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो और करंटली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कोई भी स्कीम में, और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन और उनके इनपुट लेके काम करते हैं, तो हम उसको अमल कर सकते हैं। तो बहुत सी स्कीम ऐसी ही होनी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने पुलिस में 1989 से काम किया है, आज 2022 है, इतने सालों में कई सारे केस डिटेक्ट किए होंगे, कोई ऐसा यादगार केस जो आपके जहन में अभी भी हो कि जब अच्छे केस की बात आए कि ये बहुत अच्छा डिटेक्शन था, तो ऐसा कौन सा केस आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जब मैं कच्छ में था तो वहाँ हमारा नेटवर्क इतना अच्छा हो गया था क्योंकि हम विलेज में घूमते थे और लोगों से इंटरेक्शन करते थे। तो वहाँ हमें उस समय 6 करोड़ की चांदी हमने पकड़ी थी, जो प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से हमने पकड़ी। और 2 ट्रक चांदी की जो वो पट्टियाँ होती हैं वो पकड़ी गई। हमने कस्टम का भी साथ लिया, दूसरे डिवीज़न के ऑफिसर का भी साथ लिया। एक वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन, वो डिटेक्शन रहा। और दूसरा एक चरस के 300 किलो कोई चरस पकड़ा गया था, तो उसका एक मेन आरोपी नहीं मिलता था। वो हमने फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस से ही वो अपने बम्बई में जाके पकड़ा। तो वो इनिशियली काफ़ी अच्छे केस थे और बाद में फिर तो एसपी लेवल पे कहीं अलग अलग डिटेक्शन होते रहे, जिससे क्राइम रेट काफ़ी कम रहा। ये जो सर आपने डिटेक्शन की वो कौन से साल के थे? ये जब मैं कच्छ में एएसपी और एसपी था, ये समझिए आप 92 93 के आसपास की बात कर रहा हूँ। शायद 92 93 में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। किस तरह से आप चेज करते थे क्रिमिनल्स को और कैसे ये सब नेटवर्क चलाते थे? ह्यूमन इंटेलिजेंस और थोड़ा सा रिस्क लेके आपको उनके एरिया में जाना, ये 2 काम बड़े इम्पोर्टेंट रहते थे। क्योंकि आपको भेस बदल के या उनके फ्लैट में जाके या आसपास में रह के ये सब करना पड़ता था, जो हमने किया था। उस समय का पुलिसिंग और अभी का पुलिसिंग कितना अंतर है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? अभी का जो पुलिसिंग है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। आज के पुलिसिंग में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बहुत बड़ा क्राइम करने में भी उसका रोल रहता है। और जब हम डिटेक्ट करते हैं तो भी वो उन्हीं के कारण पकड़ा जाता है। तो अभी हमारे जो एनालिसिस होती है फ़ोन रिकॉर्ड्स की, उसके मूवमेंट की, उसके लोकेशन की, उससे हम उसको पक्का पकड़ पाते हैं कि ये कहाँ गया, कैसे गया। तो आजकल तो मैं कहूँगा कि जो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है या एविडेंस है, ये ज़्यादा हो गया है, ह्यूमन थोड़ा सा कम हो गया है। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बड़ी है, साइंटिफिकली और टेक्निकली पुलिस उसका यूज़ करती है, पर सामने से देखा जाए तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर क्रिमिनल भी बढ़ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेज या वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज कुछ वायरल होते हैं, तो उसको लेके कई बार गलत रिएक्शन मार्केट में आता है। तो इस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से कि ऐसे मैसेज से कैसे बचा जाए और कैसे उसकी तथ्यता तपासी जाए? देखो, हम किसी भी इस तरह के चीज़ों को हम पब्लिक के सपोर्ट से
टैकल कर सकते हैं। पब्लिक का सपोर्ट एक जनरल टर्म है, इसको स्पेसिफिक जब हम करते हैं तो हम जब फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड बनाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ साइबर क्राइम बनाते हैं, तब हम इसका निकाल कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कंसेप्ट आपने पहले सुना, वो लॉ एंड ऑर्डर में या उस समय के काम करता था। जब हम सीआईडी में, मैं जब यहाँ दोबारा आया महिला सेल में 10 साल पहले, तो हमने यहाँ फ्रेंड्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड का एक वॉलंटियर्स फोर्स खड़ा किया, वॉलंटियर्स करीब 2000। हमारा ये मानना है, मेरा ये पर्सनली मानना है कि पब्लिक के ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी लाभ के, पर उनमें सिर्फ एक लगाव है, एक पैशन है कि हमें पुलिस के मदद रूप होना चाहिए। तो हमने ऐसे लोगों को इनवाइट करके उनको अपना फ्रेंड्स बनाया हुआ है। वही कंसेप्ट बाद में साइबर क्राइम में भी इस्तेमाल हुआ और उन्होंने भी साइबर गुरु, साइबर फ्रेंड बनाए। तो ये सब लोग जो हैं हमें मदद करते हैं जब इस तरह की र्यूमर, गलत चीज़ फेंकती हैं, तो हम इनके थ्रू सही चीज़ मैसेज पहुंचवाते हैं और वो न्यूट्रलाइज उनको करता है। आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस में जुड़ना चाहते हैं और आप उनके लिए एक क्या पिलर्स है कि जैसे आपको देख के वो लोग चाहते हैं कि भाई हम पुलिस डिपार्टमेंट में जुड़े, पर वर्दी है, वर्दी की जिम्मेदारी अलग है। जिस तरह से फिल्मों में बताया जाता है, रियल हीरो और रियल हीरो के बीच में जो अंतर है, जो अभी के जो युवा धन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से अभी हाल का जो माहौल है? देखिए, पुलिस अकेली ऐसी सर्विस है जो डर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और जो सहायता के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, खासकर महिला, बच्चे, बुजुर्ग या जो नीडी पर्सन है, और जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो जो भी युवा धन है उसको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो पुलिस में क्यों आना चाहता है। ये सिर्फ नौकरी ही नहीं है, ये एक पब्लिक और सोशल सर्विस भी है। ये सिर्फ 10 से 5 की नौकरी नहीं है, यहाँ उसका जो टाइम पीरियड है, वर्किंग आवर्स है, वो एक्सटेंड हो सकता है, छुट्टी ना मिले ऐसा भी हो सकता है। तो उसको ये रिस्क फैक्टर, और रिस्क तो है ही, क्योंकि जब आप सीरियस क्रिमिनल को डील करते हो तो वो रिस्क भी है। तो युवा धन को यही है कि अगर उसको मतलब नौकरी की श्योरिटी और देश सेवा करनी हो, समाज सेवा करनी हो, तो इससे ज़्यादा बेटर, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक से आप डील करते हो, पब्लिक से आपका कनेक्शन होता है, आप नब्ज समझते हो कि पब्लिक क्या है, पब्लिक वाला क्या कह रहा है, वो उसको समझ आता है। वो एक आईएएस को समझ नहीं आएगा, वो किसी अकाउंट्स ऑफिसर को समझ नहीं आएगा, वो किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को समझ नहीं आएगा, वो सिर्फ पुलिस को ही आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली डील करता है। तो इस एंगल से वो आता है, तो इससे अच्छी सर्विस कोई नहीं है। જી ચોક્કસથી પ્રથમ સાહેબ, જે રીતે આપણે જણાવ્યું કે નવોદિતોને ક્યાંક ને ક્યાંક દેશ પ્રત્યેની ચાહના અને લોકો માટેની સેવાની ખાસ જરૂર છે અને એ જો ચાહના હોય તો જ આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોડાવવું જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો. તો જોયું કે જે રીતે અનિલ પ્રથમ સાહેબે જણાવ્યું કે જેઓ પોતે સીઆઈડી ક્રાઇમના ડીજીપી છે અને ગુજરાત પોલીસમાં ગણતરીના સુપરકોપમાં તેમનું નામ આવે છે તેવા અધિકારી કે જેમને અનેક લોકો પોતાનો આદર્શ માને છે. તેમણે જણાવ્યું કે જો ખરેખર અધિકારી તરીકે જો સેવા બજાવવી હોય અને સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવવું હોય તો દેશદાજ ચોક્કસથી હોવી જોઈએ, સમાજની સેવા કરવી જ જોઈએ. આવા જ વધુ એક અધિકારી સાથે આપણે ફરી એકવાર મળીશું. સત્યમેવ જયતેમાં, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.